सा गरि गरि सा सा रे गा मा ग रे नी सा रे गरि सा गरि गरि सा की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 सारे गा मग रे सारे गरि गरि सा गरि गरि सा सारे गा मग रे सारे गरि गरि सा सुहावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों में सरताज है सुहावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों में सरताज है देव की भांति पूजन करे आज हम देव की भांति पूजन करे आज हम स्वागतम 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 सारे गा मग रे नी सारे गरि गरि सा सारे गा मग रे नी सारे गरि गरि सा मन की बलिया से हमने गलियां चुनी श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी मन की बलिया से हमने गलियां चुनी श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम स्वागतम 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 You, I'm Adri Sharma, got a great opportunity to welcome our alumni. Did you know there is something great in this chilled morning? The warmth of the arrival of our elder family members, our alumni. As we know, nobody is bothered about an institute more than its alumni, especially if they are Navodiyans, as we are the family. Alumni meet is very common in the school where ex-students meets annually, remains about their childhood and relives their lives. But in our case, it is something close to the paradox. As we all know, we are Navodiyan a family. Today, the ex-Navodiyans came together not just for the event, but for the celebrations of the Navodiyans connection, celebrations of and the purest of the great purpose. A warm welcome to each and everyone. I would like to appreciate all the efforts that is done by you all for the development of our family. And thank to you for the justifying the years spent by you at this our beautiful home, JNB Rajouri Kotranka. Navodaya, at last, but not the least, I would like everyone to participate today and hope all you will like the arrangements made by us for you for your reunion. I hope you will enjoy the great event. Thank you and you are most welcomed. Burgi Vice Principal Sir, fellow teachers and dear children, it's really a very great and grand occasion today that we have with us the alumni of this Vidyalaya who have already been busy in their respective jobs, but they, on our call, on our invitation, they have spared their valuable time, precious time, and joined us today to be with us, to relive their past moments and to share their experience with you. You will see when you will keep listening and keep sitting here, they will come on the stage one by one and they will also share their experiences and they will also give you some motivations, some guidance how to live life and how to achieve success in your life.
So students, as the first speaker has already told you what is the importance of this alumni meet in Navodaya system and how much valuable and precious these moments are for us, for the students who are already studying here. So I feel a lot of pleasure and pride today to have with us such precious gems of this institution who have passed out from this Vidyalaya and who have now been serving in various posts like teacher, lecturer, doctors, and serving the society and also giving some light to the society how to live life in a proper way, how to use time to construct the life and become the torch bearer for the others. They are the pioneers. Our alumni are our messengers. Our alumni are the pioneers who lead the society. The purpose of the Navodaya Vidyalaya is to build a complete personality, multifaceted personality, holistic personality, having all-round development. So, the various teachers, the various departments of the Vidyalayas are catering the needs, and this Navodaya Vidyalaya, which is now named as PM Sri Jawahar Navodaya Vidyalaya Kotranka, District Rajouri, it is an institution which is there for the purpose of shaping the personalities of the rural talented children. Children who are admitted here in class 6, they live here up to class 12 and they go through various stages, various activities are organized for them. They take part in various activities, arts, music, sports and computer education, internet and everything, the library facility. Each and every facility, each and every teacher, each and every staff member cooperates and is taking part in shaping the personality of the children. Again and again we have been invoking you, we have been asking you, requesting you to take part in all the activities, to come in the remedial classes, come in the supervised classes, attend all the classes timely, cooperate with us. So students, this new shape of this Vidyalaya and the future, the bright future that this Vidyalaya will have, will be due to you, the children who are sitting here, the girls and boys from 6 to 12. And the children who have already passed out, who have come here, they are the specimen, we can say. They are the models, they are the examples that how much the contribution of this Vidyalaya may be for a child's life. Some of the alumni, they will come on the stage when they will tell you that their future, the present that they have today is because of this Vidyalaya. You will listen, you must acknowledge, you must think about it and also take inspiration from them, their success stories. Children, this is the day when we reunite with our students who have already passed out. So it is a bridge between the old generation and the new generation. A bridge, a connect between the students who have already passed and students who are already studying. बच्चों, ये जो alumni meet है, ये हमारे पूर्व छात्रों और वर्तमान के छात्रों के बीच में एक लिंक है, एक संबंध है, एक कनेक्ट है. वो आपको बता सकते हैं कि इस विद्यालय का क्या महत्व हो सकता है आपके जीवन को शेप करने में, कैसे आपको इस विद्यालय में रहना चाहिए और कहाँ तक आप इस विद्यालय से क्या क्या ले सकते हैं और कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कैसे आपको सही उपयोग करके और सही तरीके से नवोदय विद्यालय में रहना चाहिए. So, children, I am again expressing my pleasure on the arrival of our alumni in our campus. We hope that in the next years and the coming years, more alumni will join us, and some of you who are sitting here already, you will also become alumni and bring yourself here so that we may get inspiration, motivation, happiness, pleasure from your company, your arrival. Once again I welcome and I hope this alumni meet will be successful and it has its own contribution in shaping the future of this institution. Thank you very much. शुक्रिया सर.
जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी का कोई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर के जमीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर के जमीन, अभी तो सारा आसमां बाकी है। Now I would like to invite Vivek sir on the stage to present a bouquet to our alumni. And I would like to invite Mr. Bharat Bhushan sir on the stage. Please welcome him with a huge round of applause. Thank you so much, sir. आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहां सारा है, फिर भी मुझे रास्ते की तलाश है, और आज फिर तुझे मंजिल ने पुकारा है। अब मैं प्रिया कौशल को बुलाना चाहूंगी सोलो डांस के लिए। Ajmer sir on stage for presenting bouquet, and I would like to invite Mr. Rajendra Singh sir on the stage to receive the bouquet. Please, sir. Please welcome Thank you so much, sir. Now I would like to invite Sangeeta ma'am on stage for giving bouquet. I would like to invite Ayaz Mahmood Malik sir on stage to receive the bouquet. Please, sir.
Thank you so much, sir. हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। अच्छा लगा आप यहाँ आए, अच्छा लगा आप यहाँ आए इस सम्मेलन में, तो ये आयोजन भी अच्छा लगा। Now I would like to invite Mr. Bharat Bhushan sir on stage to share his experience with us. Good afternoon, everyone. Respected principal sir, staff of the school, my friends and other alumni. जैसे कि नाम आपने सुना, मेरा नाम भारत भूषण शर्मा है। अभी मैं एक टीचर हूँ और गवर्नमेंट हाई स्कूल हथल में, जो कि सुंदरबनी तहसील में पड़ता है, वहाँ पे पोस्टेड हूँ। नवोदया एक जुनून है, आई वुड से। मैंने 91 में ज्वाइन किया था एज ए स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास और JNV कोटरंका से 96 में पास आउट हुए एंड 12th जो है हमने JNV जगानू से की थी, 98 पास आउट हूँ। रिगार्डिंग एक्सपीरियंस बोलें तो शायद हमारा एक दो बैच ऐसा था जिसने सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन देखी है इस नवोदय में। हम नीचे वाली बिल्डिंग्स, अगर किसी ने हॉस्पिटल देखा है नीचे वाला, वहाँ बिल्डिंग्स में हम रहा करते थे। अलग अलग 7-8 हॉस्टल्स हुआ करते थे, गर्ल्स बॉयज़। और अपने फ्रेंड्स जो आज हम 3 आए हुए हैं एक ही बैच के, उनमें शायद वाहिद मैं ही एक हूँ जिसने ट्रक में सामान भर के सारे गद्दे और बेड्स जो हुआ करते थे डबल डेकर स्कूल का, सारा सामान हमने नीचे से ऊपर लाया हुआ। और यहाँ जो आज शायद ये क्लासरूम्स हैं, यहाँ पे हम कभी रहा करते थे। और ये ऊपर वाला हॉस्टल जो है, तब ये बॉयज़ हॉस्टल हुआ करता था, तो इसमें लास्ट वाली खिड़की के पास मेरा बेड हुआ करता था। स्टार्टिंग के 2-3 साल शायद जब 6 में आप एंटर करते हो, काफ़ी आपको ट्रांजिशन लगती है, चेंजेस लगते हैं। माँ बाप को छोड़ के आते हो, अपने पुराने दोस्तों को छोड़ के आते हो, तो मुश्किल रहते हैं। बड़े सारे लोग, बच्चों की कोशिश होती है कि हम वापस, हमें TC मिल जाए, हम चले जाएं। पर जब आप 7th 8th पास कर लेते हो और इस माहौल में घुल मिल जाते हो, और रेस्ट ऑफ द जो स्टेजेस है आपकी 9th 10th 11th 12th, फिर आपका एक ऐसा जुड़ाव रहता है जो ताउम्र आपके साथ बना रहता है। और इस जो 7 साल हमने लगभग नवोदय में गुजारे, वो जो फ्रेंड्स अलग अलग स्टेजेस पे हमें मिले, चाहे वो जगानू में मिले, चाहे कोटरंका में मिले, किसी न किसी रूप में अभी भी कनेक्टेड हैं। और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, उस ज़माने में चिट्ठी भी लिखते थे तो शायद 15 दिन के बाद मिलती थी। कई बार घर से चिट्ठी आती थी कि घर में कोई फंक्शन है, तो जब तक चिट्ठी यहाँ पहुँचती थी तब तक वो शादी या वो जो भी घर में फंक्शन होता था वो कंप्लीट हो चुका होता था। तो यहाँ से चिट्ठी लिखते थे कि कोई घर से पेरेंट्स आए मिलने के लिए। अब तो शायद आपके डेज फिक्स हैं, 2nd सैटरडे या 4th संडे कुछ। जैसे मेरी बेटी भी अभी JNV जम्मू 2 में है, नरडी वाला में, तो 2nd सैटरडे उनका मीटिंग डे होता है PTM का, और 4th संडे जो है हम बच्चों से मिल सकते हैं। पर तब उस ज़माने में ऐसा नहीं था, पेरेंट्स कभी भी आ सकते थे, कभी भी जा सकते थे, कई बार 6-6 महीने नहीं भी आते थे। और छुट्टियों का भी शेड्यूल अब मैं काफ़ी देखता हूँ कि वेकेशंस आपको दिवाली की भी होती हैं, विंटर वेकेशंस भी होती हैं। तब गिनी चुनी वेकेशंस होती थी छुट्टियों की, जो सर्दी की छुट्टियां होती थी, और शायद गर्मियों में 5-10 दिन। बाकी सारा सेशन जो है वो स्कूल में ही गुजारा जाता है। बहुत सारी यादें खट्टी भी है JNV के साथ जुड़ी हुई, और बहुत सारी मीठी भी है। शायद जो आज मैं हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, वो JNV की वजह से हूँ। अपने मुंह मियां मिठू तो नहीं बनूंगा, पर मैं अपने बैच का टॉपर था। 10th क्लास जो 96 पास आउट हूँ, मैं अपने बैच का टॉपर था। और सिर्फ स्टडीज़ में मैं अच्छा नहीं था, पर उसमें नवोदय की देन है। मैं एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन था और हूँ अभी भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वॉलीबॉल खेलता हूँ अपने स्कूल में बच्चों के साथ। और अर्ली मॉर्निंग इवन की हमने
अपने गांव में क्लब बनाया हुआ है, पतरारा क्रिकेट क्लब। कई बार अभी भी हम क्रिकेट खेलने जाते हैं। वो सारी नवोदय की देन है, और नवोदय ही था जिसने स्टेज फियर को कम किया। नहीं तो अक्सर बड़े सारे लोग अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते हैं, पर स्टेज पे बोलने पे उनकी टांगे काम जाती हैं। और नवोदय एक ऐसा मुकाम है जो आपको ऐसा एक्सपोजर देता है, वो ताउम्र आपके काम आता है। अभी शायद मुझे मॉर्निंग का शेड्यूल आपका पता नहीं, असेंबली में हमारे टाइम थॉट, न्यूज और एक दो प्लेज या कुछ और भी आइटम्स होती थी। आप शायद कुछ और बड़ा हो, म्यूजिकल तो नहीं होता था तब, माइक्स वगैरह नहीं थे। मेरे फ्रेंड राजेश यहाँ बैठे हुए हैं, वो मॉर्निंग प्रेयर में अक्सर ढोलक पे साथ दिया करते थे। कभी कभी हम जो आपका मार्च पास होता है या उसमें मैं भी वो बड़ा सा ड्रम बजाया करता था कभी कभी। तो अक्सर जो बच्चों की ड्यूटी लगती थी मॉर्निंग प्रेयर में थॉट बोलने के लिए या न्यूज़ बोलने के लिए, तो छोटे बच्चे अक्सर बोलते थे भैया आप बोल दो मेरी जगह आप बोल दो। तो वो ऐसा बोलना शुरू हुआ कि बनते बनते हम अध्यापक ही बन गए, और अभी भी बोलना जारी है। इवन बहुत सारे टीचर्स जिनको हम कभी जिंदगी में नहीं भूल पाए और ना शायद आगे भूल पाएंगे। मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा जफर इकबाल कुरैशी सर, जो जहाँ पे पीजीटी इंग्लिश रहे हैं और बाद में अभी एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं जेएनबी सुरन कोर्ट से शायद। उनका मेरी लाइफ में खास करके काफ़ी रोल रहा इंग्लिश सीखने में। खास करके बेसिकली तो मैं 5th से पहले भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही पढ़ता आया हूँ, पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ग्रामर की कमी रहती है, ग्रामर की डेफिशिएंसी हमेशा रहती है। पर जो 7-8 महीने जफर सर ने हमारे साथ 10th में लगाए, वो उनकी पढ़ाए हुए सेंटेंसेस या ग्रामर के कुछ पोर्शंस आज भी मुझे याद है। और लास्ट टाइम हमने काफी सारे फ्रेंड्स ने मिलके एक एलुमनी की मीट अपनी तरफ से की थी जम्मू में, तो उसमें वो वहाँ पे आए थे। काफी सारे फ्रेंड्स हम इकट्ठे हुए थे, और पुराने टीचर्स को भी, जिसमें सोमनाथ सर जी जो प्रिंसिपल थे जीएनबी नट में, वो भी शायद रिटायर हो गए अभी, तो उनको भी बुलाया गया था। काफी सारे टीचर्स आए थे पुराने, और बहुत सारी चीजें जो अब याद करते हैं तो कुछ में हमें ये होता है कि हमने तब गलती की, कुछ में ये होता है कि हम उसमें बहुत अच्छे थे किसी फील्ड में, या किसी टीचर के साथ या टीचर्स का बिहेवियर वो ताउम्र याद रहता है। कितने सारे बच्चे यहाँ पे सुंदरबनी से हैं, नौशहरा से। जब हम यहाँ पे पढ़ते थे तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो थे, हमारे फ्रेंड्स थे या क्लासमेट्स थे, वो सुंदरबनी से होते थे या नौशहरा से होते थे। अब शायद थोड़ा सुंदरबनी और नौशहरा का ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा कम हो गया है। अब वो उसका मुझे नहीं पता कि अब, क्योंकि आपको क्रीम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। आप एक प्रोसेस से होके गुजर के आए होते हैं, आपने टेस्ट क्वालिफाई किया होता है, तब वो क्रीम शायद सुंदरबनी में ज्यादा थी, अब क्रीम बाकी इलाकों में ज्यादा हो गई है, क्योंकि मोबाइल का ज़माना आ गया, इंटरनेट का ज़माना आ गया है। हमने बहुत सारी ट्रांजिशंस देखी हैं। अगर अभी भी मैं कहीं बार अपने बच्चों से स्कूल में पूछता हूँ कि क्या आपने वो बड़ा सा रेडियो देखा हुआ है, जब बड़ा सा टीवी होता था टेक्सला का जिसमें शटर हुआ करता था। इवन कि बच्चों को कैसेट प्लेयर्स भी शायद नहीं पता है कि कैसेट्स, मेरी पर्सनल कलेक्शन अभी भी मेरे घर में पड़ी हुई है 200 कैसेट्स की लगभग। अब तो आने वाले दिनों में शायद बच्चों को सीडी प्लेयर भी ना पता हो। तो बहुत सारी ट्रांजिशंस हमने देखी हैं, और नवोदय में भी इसमें भी ट्रांजिशंस देखी हैं। बड़ी सारी कमियां तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वक्त के साथ सब बदलता है। बहुत सारी चीजें थी जो हम तब मिस करते थे कि ये क्यों नहीं है हमारे पास, पर अब हमें, जब हम उस स्टेज पे है, जब हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो हमें लगता है कि शायद रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से वो आपके प्रिंसिपल या आपके स्टाफ वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, पर अपनी तरफ से उनकी पूरी एफर्ट्स होती हैं कि उनके शागिर्द किसी भी फैसिलिटी से महरूम ना रहें।
तो मैं बहुत ज़्यादा लंबे समय ना लेते हुए आप सभी का थैंक यू करूँगा कि आपने स्टेज पे बुलाया, आपने हमें निमंत्रण दिया। 86 में ये स्कूल शुरू हुए थे शायद, 86 से लेके 2023 तक अगर मैं मान के चलूँ कि इस स्कूल से ज़्यादा तो नहीं 800 या 1000 के आसपास बच्चा पास आउट हुआ होगा, और उनमें से शायद 5-7 ही आ पाए, क्योंकि ज़िंदगी की मसरूफियत ऐसी हैं सबकी, अपने अपने जॉब्स में, अपने बिजनेसेस में ऐसे बिजी हैं। पर मैंने बड़े रेयर कोई नवोदय देखा होगा कि अगर आप उसको बोलो कि मैं नवोदय में पढ़ा हूँ या मैं नवोदय से वाबस्ता रहा हूँ, तो वो आपको हंस के ना मिले। इवन कि हम कुछ एलुमनी मीट में, जो कि फ्रेंड्स ही ऑर्गेनाइज करते हैं, पंजाब वगैरह में हमने अटेंड की 1-2 बार, कभी नहीं लगा कि वहां पे कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है। जब भी मिलेगा, कोई भी मिलेगा, आई एम ए नवोदयन। तो आई जस्ट फील लाइक कि नवोदयंस आर जेम्स ऑफ द सोसाइटी एंड आई विश दे रिमेन एज जेम ऑफ सोसाइटी। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस नवोदय के सफर को हमें बताया। और खुद को पेश करो, नाचो गाओ, सीना चीर के दिलों को अपनी जान लगाओ। देखो ना सोनेपन से इस जहां को, कुछ दूसरों का कुछ हमारा दिल बहलाओ। इसी शेर के साथ मैं जूनियर गर्ल्स को बुलाना चाहूंगी स्टेज पर ग्रुप डांस के लिए।
महफिल हर खुशी सुहानी रहे, जिंदगी में इतनी खुशी मिले आपको कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। Now I would like to invite Neha ma'am on stage for presenting a bouquet to our alumni Dr. Abid Subhani. Please sir. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Sunil sir on stage for presenting a bouquet. I would like to request Dr. Naveed Chaudhary sir to please come on the stage and receive the bouquet. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Muhammad Asif from class 12th for speech. हर नजर को एक नजर की तलाश है, हर नजर को एक नजर की तलाश है, हर चेहरे में कुछ खास है। आपका इस्तकबाल हम यूं ही नहीं कर बैठे, क्या करें हमारे मेहमान ही कुछ खास हैं। काबिल कदर जनाब प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल साहब, उस्ताज़ा इकराम और हमारे अलुमनी, सलाम व आदाब। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं क्लास 12th में मेडिकल से, और आज कुछ ही अल्फाज लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज इस चमकते हुए मौसम के साथ बड़ी हस्तियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े आज़ाज़ और खुशी का ये मौका है, ये दिन बहुत ही अहम है। ये सबको इतने सालों बाद वो मंजर, वो यादें और वो एक दूसरे से मिलने का मौका जो है वो याद दिलाते हैं। और यहाँ आने के लिए आपके मसरूफ शेड्यूल में से कुछ वक्त निकालना हमारे लिए और बहुत ही ज़्यादा लगता है आपको, लेकिन हम बहुत खुश हैं इसके लिए। मैं इससे कुछ वक्त निकालना है, बहुत ही आगे जो चंद ही वक्त निकालने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे मौजूदा जो तलबा ने आपके लिए जो भी यहाँ पे मुकर्रर किया है, मुझे उम्मीद है आपको पुरानी यादें दिलाएंगे और आपको हर एक वो पल याद आएगा जो आपने यहाँ पर बिताया है। और आप सबको पुरानी यादों के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी यादें होती हैं, क्यों अलुमनी मीट है ये तो हर एक के साथ होता है, हर स्कूल में होता है, हर कॉलेज में भी होता है, लेकिन यहाँ नवोदय में ये होना ये एक बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर खाना पीना, रहना सोना, पढ़ना सब साथ रहता है। और हम तमाम जानना चाहते हैं कि आपने अपनी जिंदगी कैसे यहाँ पर गुजारी, वो भी आप सब बताएं। और हम भी अगर गलत हैं तो अपने इरादों को साबित कदम पर चलने का इरादा रखते हैं और चलेंगे भी। आप हमें सही रास्ता दिखाएंगे और हम आपको बिल्कुल फॉलो भी करेंगे। इसके साथ हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप सब आज यहाँ पर मौजूद हो, चमकती हुई बर्फ भी आज ही, इसके साथ आप भी चमकते हुए सितारे हो यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर बुलाने का कोई मकसद खास नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपकी जो यादें जो होती हैं हमारे साथ जुड़ी हुई होती हैं, और आपकी जो यादें होती हैं वैसे भी हम भी एक दिन यहाँ पर आना चाहते हैं और हम भी अपने मकसद तक पहुँचना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे सीनियर्स, बाहर से आए हुए मेहमान और बाकी हमारे हमनवाब दोस्त, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से सलाम व आदाब। और एक बार मैं चाहता हूं कि आप सभी हमारे जो सीनियर्स आए हैं बाहर से मेहमान के तौर पे, आज दिल की गहराइयों से तालियों के साथ एक बार उनका स्वागत करें। एक शेर और अपने सीनियर्स के लिए।
हम 7 बरस क्या बसे उस चार दीवारी में, वो तो उम्र के लिए हमें अपना बना गया। हम 7 बरस क्या बसे उस चार दीवारी में, वो तो उम्र के लिए हमें अपना बना गया। जिसे जेल कहते समझते थे हम कभी, आज उसी ने हमें आसमान में उड़ना सिखा दिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आज आपके बीच एक सॉन्ग लेकर हाजिर हुआ हूं जो कुछ यूं है। अगर तुम बेनकाबा हो, कयामत की घड़ी होगी। अगर तुम बेनकाबा हो, कयामत की घड़ी होगी। तुम्हें अपनी बड़ी होगी, हमें अपनी बड़ी होगी। अगर तुम बेनकाबा हो, कयामत की घड़ी होगी। सरे महफिल कभी आकर जो तुम जलवे बिखेरोगे। सरे महफिल कभी आकर जो तुम जलवे बिखेरोगे। निगाहों की छुरी जब तुम हमारे दिल पे फेरोगे। न पूछो हाल क्या होगा, न पूछो हाल क्या होगा। लबों पे अड़ी होगी। अगर तुम बेनकाबा हो, कयामत की घड़ी होगी। मोहब्बत से मुहूर्त से जो तुम जलवे बिखेरोगे। मोहब्बत से मुहूर्त से रब ने तुमको बनाया है। तेरी नाजुक जवानी को नजाकत से सजाया है। बढ़िया दिल तसल्ली से, बढ़िया बिद तसल्ली से तेरी मूरत कड़ी होगी। अगर तुम बेनकाबा हो, कयामत की घड़ी होगी। चमकते चांद चेहरे से जो तुम जुल्फ़ें हटाओगे। चमकते चांद चेहरे से जो तुम जुल्फ़ें हटाओगे। सामने बैठ कर मेरे जो तुम मुस्कुराओगे। करेगा दिल तुम्हें सजदे, करेगा दिल तुम्हें सजदे। नजर तुमसे लड़ी होगी। अगर तुम बेनकाबा हो, कयामत की घड़ी होगी। अगर तुम बेनकाबा हो, कयामत की घड़ी
बड़ी होगी। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वर्दी टीचर्स और स्टूडेंट्स सारे और हमारे साथ आए हुए बाहर से मेहमान, अब सब लोगों को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, आदाब, सलाम। तो आज ये सारा कुछ देख के, मैं ज़्यादा पुराना स्टूडेंट नहीं हूँ, यहाँ से 2015 में पास आउट हुआ हूँ। 2008 से लेकर 2015 तक की जो जर्नी थी वो 7 साल आप ही की तरह इसी स्कूल में, लेकिन जो वो जर्नी थी वो इतनी फ्रूटफुल थी, शायद उसी की बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ और इतनी सारी चीज़ें देखने को मिली। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो ये नवोदय का टाइम होता है ना, स्पेशली 7वीं से लेकर 12वीं तक, ये मैं उसके बाद भी कॉलेज लाइफ में भी हॉस्टल में रहा हूँ। मुझे 15 साल हॉस्टल में हो गए हैं ऑलमोस्ट। अभी जब से मेरी जॉब लगी है 4 महीने पहले तक मैं हॉस्टल में ही था, लेकिन जो एक्सपीरियंस नवोदय के टाइम का था, उस टाइम की हॉस्टल लाइफ थी या वो दोस्त थे, वो एक्सपीरियंस लाइफ टाइम रहता है। और ये यहीं पे भी नहीं, आप कहीं पे भी थ्रू आउट इंडिया में कहीं पे भी किसी भी जगह मिलोगे, जब आप किसी को बोलोगे मैं JNV से हूँ, ऐसा लगेगा शायद हम एक ही घर के हैं। वो कोई किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी इंस्टीट्यूट, आप क्या करते हो, डज नॉट मैटर एट ऑल। बस आप बोलोगे मैं नवोदय हूँ। मेरी कॉलेज लाइफ में भी जो थे मेरे सबसे जो अच्छे दोस्त थे, एक JNV करगिल का था, एक JNV अनंतनाग का था, तो वहाँ पे भी जाके JNV की हमारी वो जो दोस्ती थी वही जारी रही। तो जहाँ तक बात है, हमारे टाइम में पढ़ाई ज़्यादा आसान थी। मैं कुछ मायनों में कहूँगा कैसे आसान थी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बड़ी सारी चीज़ें होती थी, रेस्ट्रिक्शंस भी होती थी, और कुछ ये जो सोशल नेटवर्क और ये मोबाइल फोन्स, ये चीज़ें भी नहीं होती थी। तो हमारे बैच के भी और उससे पहले बैच के भी आप कहीं पे भी देखोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, हेल्थ में, तो मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी के किसी भी फील्ड में सबसे ज़्यादा ऑफिसर, अगर एक पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूट के देखोगे तो मुझे लगता है JNV से ज़्यादा किसी भी इंस्टीट्यूट के नहीं। आप वो चीज़ें फेस करते हो 6th स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड के बाद एक आप एंट्रेंस दे के आते हो, तो आपका एक नेचुरली वो कॉन्फिडेंस हाई होता है। आप जम्मू में जाओगे, जब आप 12th पास आउट करोगे, नीट के लिए बच्चे प्रिपेयर करते हैं, हमने भी दिया नीट, तो वहाँ पे भी आप देखोगे तो लाखों में आते हैं, लेकिन वहाँ पे मेजॉरिटी जो सिलेक्शंस देखते हैं हम वो JNV की। उसका कारण यही है, क्वालिटी एजुकेशन है यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज़ ये बात है कि NCERT बुक्स जो आप यहाँ पे पढ़ते हो, नीट का हो, चाहे JEE मेंस का हो, JEE एडवांस का हो, सारे एग्जाम कॉम्पिटिटिव जो हैं वो इन्हीं स्टैंडर्ड बुक से आते हैं। और आपका जो ये 9th से, स्पेशली 9th से 12th तक का टाइम पीरियड है, मैं कहूँ ये कैरियर डिसाइडिंग है आपके लिए। अगर आपने 3-4 साल अच्छे से लगा दिए तो फिर आप जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले। आजकल मैक्सिमम बच्चों का यही टारगेट होता है कि 12th के बाद कहीं अच्छी जगह किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। कोई नीट के लिए करता है, कोई JEE मेंस के लिए करता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये जो 9th से लेकर 12th तक का टाइम पीरियड है, इसमें अच्छे तरीके से अगर आप 3-4 साल अच्छे लगा लेते हो, बाद में बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोचिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आपका ये 11th 12th 10th इसमें अगर आप अच्छे किए हो तो आप कहीं पे भी मार नहीं खाओगे, किसी भी लिहाज से। मैं कोई टॉपर नहीं था अपने बैच का, मैं अपनी बात बताऊं आपको, मेरी 10th में भी शायद 7.5 के 8 OGPA था उस टाइम, जो कि एवरेज स्टूडेंट था। 12th में भी ऐसा ही था, लेकिन जो मैंने नीट है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया हुआ है। तो उसका यही कारण है कि जो वो JNV में हमने जो हमें यहाँ से बेस बना हमारा, उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आपको एज रहेगा, बहुत एडवांटेज है आपके पास कहीं पे भी जाओगे। तो उसके बाद भी अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो, लेकिन आपका बेस यहीं से स्टार्ट होता है। आप इसको अच्छे तरीके से लेके चलेंगे तो आप लाइफ में कहीं पे भी, फिर मुझे यहाँ से निकले हुए आज सिर्फ 2015 का पास आउट हूँ, सिर्फ या मुझे हो गए आज 8 साल, लेकिन 8 साल में जहां तक भी पहुंचा हूं, मैं कहूंगा मेरे लिए JNV से अगर मैं किसी और इंस्टीट्यूट में होता तो शायद मैं आज यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता। अभी मेरी जैसे बता रहा हूँ कि पोस्टिंग भी आपके ब्लॉक में ही है, ब्लॉक कोटरंका में ब्लॉक वेटनरी ऑफिसर भी हूँ, वेटनरी असिस्टेंट सर्जन।
आपको किसी भी वक्त किसी भी कारण नीट का मटेरियल मेरे पास बहुत है। अगर आप में से कोई यूपीएससी का पढ़ता है तो मेरे पास वो मटेरियल भी है। तो फॉर्चुनेटली अगर वेटनरी फील्ड में कोई जाता है तो मेरे पास सारा स्टडी मटेरियल है। मेरे घर पे एक छोटी सी मिनी लाइब्रेरी है। आप कभी भी चाहो मुझसे कोई भी बुक, किसी तरीके की कोई भी सजेशन वो ले सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, सबको धोखा दे सकते हो लेकिन खुद को धोखा कभी नहीं देना। अपने कैरियर के लिए जेन्युइन रहना, सिंसियर रहना, पंचुअल रहना। आपको पता है आपकी क्या पोजीशन है, आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, उन्हीं चीजों को लेके चलना। जो इंसान खुद को धोखा दे गया वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। अपने आप के लिए सिंसियर रहो। ऐसी लाइफ, ऐसा प्लेटफॉर्म पढ़ाई के लिहाज से कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। आप अगर बाहर दूसरे इंस्टीट्यूट को कंपेयर करोगे, जितने मर्जी आप डीपीएस, आर्मी, गुडविल, सुबह से बच्चे स्कूल बसेस में चढ़ते हैं, 2 घंटे उनको जाने में लगते हैं, 2 घंटे आने में लगते हैं, ना वैसा स्टडी का माहौल मिलता है घर पे। आपको एक बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ पे। यहाँ से बहुत दूर दूर तक दुनिया गई हुई है, बहुत दूर तक लोग निकले हुए हैं। बस अपने कैरियर को लेके थोड़ा सिंसियर रहें। आजकल जितनी फैसिलिटीज ज्यादा है उतनी डिस्ट्रैक्शंस भी ज्यादा है। मोबाइल फोन, सोशल नेटवर्क, इंस्टाग्राम, फेसबुक आम बात है, हर कोई यूज करता है। इन चीजों से थोड़ा अवॉइड करो और अपने कैरियर के लिए सीरियस रहो। जहां कहीं हमारी जरूरत होगी, हम आपके बड़े भाई हमेशा आपके लिए, जहां कहीं हमारी जरूरत होगी हमारी हेल्प ले सकते हैं। बाकी और कुछ नहीं कहूंगा। शुक्रिया। Teachers and my dear colleagues and students, a very good afternoon to all of you. तो मैं अपने आप को फॉर्चून लकी समझता हूँ कि मुझे वो वाला ट्रांजिशन फेस मिला जो अभी एक सर 96 में पास आउट हुए हैं उन्होंने अपना बताया, और जो मेरे कुलीग 2015 में पास आउट हुए हैं उन्होंने बताया। तो मैं पास आउट हूँ 2007 में, तो बीच वाला फेज जो है वो मुझे मिला है और मेरा नंबर भी तीसरे नंबर पे लगा है ना। तो बहुत सारे मिक्स्ड एक्सपीरियंस हैं, बहुत सारा चेंजिंग हमें देखने को मिली। तो तब जैसे मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पे जो मैं अपनी मतलब एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा 12th क्लास वाली पर्टिकुलरली, जो मुझे अभी तक याद है। तो हम 12th क्लास में थे, वहाँ सामने शायद तब 12th लगती थी, अब भी शायद 12th ही लगती होगी। 2007 में एक भूचाल आया था, शायद आपको याद होगा, है ना, अर्थक्वेक। तो हम उस टाइम क्लास लगी थी, तो माइट भी आप कनेक्टेड हो, इंदू मैम बायोलॉजी पढ़ाती थी, जो 12th के बच्चे हैं शायद जानते हो, शबिंदु सर, इंदू मैम थे वहाँ। तो उस टाइम क्या हुआ कि मतलब क्लास चल रही है और भूचाल आ गया, सारे बच्चे भाग रहे हैं, किसी ने खिड़की से छलांग लगाई, किसी ने नीचे सीढ़ियों से। तो एक वो वाला एक्सपीरियंस रहा। फिर उसके बाद जैसे इन्होंने कनेक्टिविटी की बात की, ट्रांजिशन फेज की बात की, 2015 वालों को मतलब सब यहाँ मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल है, यूट्यूब है, हर फैसिलिटी है। 96 वालों ने बताया कि लेटर लिखना पड़ता था, मतलब 15 दिन बाद हमें पता लगता था कि कुछ फंक्शन हो चुका है। तो हमारा वाला टाइम जो 2000 वाला था मिक्स था। 2005 से मतलब मोबाइल फोन आ चुके थे, बट यहाँ हम 2007 में थे, बट हमारे पास मोबाइल तो थे बट टावर नहीं था, है ना, नेटवर्क नहीं था। तो हम वो सामने वाली पहाड़ी जो ऊपर, जहाँ आज मैं देख रहा हूँ आर्मी के कुछ ब्लॉक्स बने सामने ऊपर, हम घर पे बात करने के लिए उस पहाड़ी पे जाते थे, तो फिर वापस आते थे। तो मतलब ऐसा वाला स्टेज भी यहाँ पे रहा है। तो बहुत सारे मिक्स्ड एक्सपीरियंस हैं। बाकी अभी मैं करंटली बोलूँ तो मैं BGSP यूनिवर्सिटी में अपना जो है अंजाम दे रहा हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट में। तो बाकी जो 12th क्लास के बच्चे थे इस बार हमारे पास वहाँ आए थे, बहुत मिल के अच्छा लगा। ऐसा ही लगा जैसे अपने ही छोटे भाई बहन हो, एक नवोदय से वो कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो मैं फिर से प्रिंसिपल सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, फ्यूचर में कहीं हमारी जरूरत पड़ती है कुछ साइंस प्रोजेक्ट के लिए तो हमें इनवाइट कर सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देने के लिए मतलब अपने छोटे बहन भाइयों के लिए तैयार हैं। कभी भी कुछ भी मटेरियल चाहिए रिलेटेड टू आपको नीट के लिए या फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज के लिए, जैसे सर ने भी बताया इनके पास भी है, आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास भी है। तो मैं अपना थोड़ा सा, मैं क्योंकि हायर एजुकेशन से रिलेटेड हूँ तो उसी का थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कि उस फील्ड में भी आइए। जैसे आपकी BSc होती है, फिर उसके बाद MSc है, फिर उसके बाद PhD है। तो ये वाला एक सफर जो है मतलब जो अपना टीचिंग फील्ड को कंटिन्यू रखना चाहता है एज असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज में लेक्चरर, तो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अपना बताऊंगा, मैंने इस फील्ड में आके CSIR नेट
जो बायोलॉजी वाली मैम है वो आपको बताएंगी क्या होता है CSR नेट, उसकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके लिए आप कोशिश कर सकते हो। बट वो अभी आपके स्टेज से थोड़ा आगे है, MSc के बाद है वो स्टेज। तो अभी मैं आपको एक यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नीट के लिए पढ़े, है ना। अभी कोई जो मैथ्स होंगे या साइंस वाले होंगे, आपको अगर मिल जाए अपॉर्चुनिटी किसी अच्छे कॉलेज में, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, तो बहुत ज़्यादा मैं चाहूँगा कि फॉर्चुनेट आप होंगे। और नवोदयन ही ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, जैसे सर ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, क्योंकि आपको वो 6 से एटमॉस्फेयर मिल रहा है जो बच्चे को जाके 12th में जाके एक्सपीरियंस करना पड़ता है। आप हॉस्टल में रह रहे हो, यहीं पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें बोलने को हैं, बट अभी इतना मैं सोच रहा हूँ टाइम भी नहीं है और वक्त भी नहीं है, प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। तो मैं इसी के साथ आप सबको वार्म ग्रीटिंग दूंगा और थैंक यू कहूँगा। आपने सच अ वंडरफुल इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया, थैंक यू आप। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਦਗਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਭੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਦੇਣੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡਾਢਾਈ ਮਨ ਕਮਾਲ ਕਰੀਦੇ ਨਾ ਲੱਭਣੀ ਨੀ ਤੇਰੇ ਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜਹਾਨ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਤੇਰੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ फूल अपनी तरह जी चीज है जहान थे सोखा व तेरी हाथ रख के कुरान पे बीचे तेरे कोलों पला मैं छुड़ावा कभी चीजे तेरे कोलों पला मैं छुड़ावा रब करे मैं मर जावा अल्लाह करे मैं मर जावा मुख तेरा देख के तो रब शर्मांदा मुख तेरा देख के तो चल शर्मांदा रब भी बना के तेनू आप पछतांदा मुख तेरा देख के जो चन शर्मांदा है रब भी बना के तैनू आप पछतांदा है कभी भी जे तेरे कोलों पला मैं छुड़ावा कभी भी जे तेरे कोलों पला मैं छुड़ावा नी अल्लाह कर मैं मर जावा नी रब कर मैं मर जावा चढ़ी जवानी तेरी नशे दा खुमारे रूप दे खजाने दी तू लगी पहरेदार चढ़ी जवानी तेरी नशे दा खुमारी है रूप दे खजाने अभी तू लगी पहरेदार है तेरी जो तारीफ तेनू झूठ मैं सुनावा तेरी जे तारीफ तेनू झूठ मैं सुनावा नी रब करे मैं मर जावा नी अल्लाह करे मैं मर जावा फुल्लां जिहा दिन तेरा कदी जे दुखावा फुल्लां जिहा दिन तेरा कदी जे दुखावा नी अल्लाह कर मैं मर जावा नी रब कर मैं मर जावा प्रिंसिपल ऑफ नंबर अभी मेरे
मेरे 3 साथी हो रहा है वो उनके बात बैठ के वो 6th क्लास से हम इकट्ठे हुए थे और आज तक हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। कुछ साथी हैं हमारे जो यहाँ नहीं आ सके, तो हमने 91 में एंटर किया था स्कूल को और 98 में पास आउट हुए थे। जैसा कि भारत भूषण ने पहले ही आपको बता दिया जो हमारा दौर था वो कैसा दौर था, तो मैं उन बातों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। हमारे जो एक्स से उन्होंने भी आपको कुछ अच्छी बातें बताई हैं। मैं चाहूँगा कि आप उन बातों के ऊपर गौर कीजिए, जैसा उन्होंने बोला आप उन्हीं बातों के ऊपर चलते हुए अपनी जिंदगी को कामयाब बनाइए। नवोदया जैसे हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट कलर रिलीजन हम बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी भारतीय हैं, मगर उसके बाद मैं आपको बोलूँगा हमें कोई पूछेगा तो हम कहेंगे कि हम नवोदियंस हैं। नवोदियंस वर्ल्ड में हमारे लिए एक मायने रखता है। जहाँ भी आप जाओगे हिंदुस्तान में, इंडिया में कहीं भी आप जाओ, आप बोलोगे कि मैं नवोदियन हूँ, वो आपको आपका कोई मजहब, कोई धर्म, जाति, कास्ट कुछ नहीं पूछेगा। वो आपके साथ एक दोस्त, भाई, बहन की तरह बर्ताव करेंगे। हमने ये एक्सपीरियंस किया है। हमने अलुमिनी मीट जो बैंड की हुई हमने अभी जम्मू में की थी, हमने पिछले साल रेज किए थे अलुमिनी मीट, उसको काफ़ी दूर से एक्स नवोदियंस आए थे। पंजाब में हम जाते हैं हर साल, हमारी कोशिश होती है कि जो एक्स नवोदियंस से मिले उनसे हमारी इंटरेक्शन हो। नेशनल लेवल की मीट होती है दिल्ली में 2 अक्टूबर। मैं चाहूँगा ग्राम में से भी वो वहाँ जा सकता है, जो एक्स नवोदियंस हैं वो वहाँ जाया करो। एक 2 अक्टूबर हर साल वहाँ पे होती है दिल्ली में। तो हम लकी हैं, आप भी सारे जो यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हो, बच्चे का नवोदियंस हो हमारे लिए, तो एक्स हो गए। आप एक लकी हो कि आपको ये एक स्कूल मिला है, ये विद्यालय मिला है पढ़ाई के लिए। क्योंकि हम अपनी फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे तो हमारी फैमिली बैकग्राउंड भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। अब तो चलो ठीक है, इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन, सोशल कंडीशंस, तो ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे हम आके हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है, जहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि यही हमने अगर ये स्कूलिंग, ये एजुकेशन, ये जो क्वालिटी एजुकेशन हमने कहीं पैसे दे के लेनी हो, जो CBSE ऑल इंडिया CBSE बोर्ड है, और हॉस्टल फैसिलिटीज, ये जो बोर्डिंग फैसिलिटी है, तो शायद हम लाखों भी खर्चेंगे तो तब भी हमें ये मुहैया नहीं होगी। तो हम सब, आप सब खुशकिस्मत हो कि हमें ये स्कूल मिला है, हम इसमें पढ़े। जो आपको टीचर्स बोलते हैं उनका आदर कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, क्योंकि ये जो अध्यापक है यहाँ पे, जो टीचर्स हैं, ये आपकी भलाई के लिए आपको ये बोलेंगे। अभी शायद आपको कुछ कड़वी भी बातें लगेंगी टीचर्स की, लेकिन जब आप स्कूल से बाहर निकलोगे, जिंदगी के क्या मायने होते हैं, वो तब आपको पता चलेगा कि नहीं, हमारे टीचर्स जो हमें बोलते थे वो ठीक हो। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो भी आपको टीचर्स, आपको जो है एकेडमिक साइट्स बोलते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको आगे जाने का मौका मिलता है। यहाँ पे अगर कोई गेम्स में है तो आप यहाँ से नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे जा सकते हो। NCC है, NSS है, तो इतनी फैसिलिटीज शायद हमें कहीं बाहर नहीं मिल सकती। वी आर लकी दैट कि हमें ये स्कूल मिला और हमने इसमें पढ़ाई की है। आज जैसा आगे भी नवोदियंस ने बोला है, तो मैं भी यही दोहराना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ ना आता तो शायद मैं पता नहीं कुछ और ही होता है। अगर मैं टीचर हूँ तो सिर्फ एक नवोदया की वजह से। माँ बाप के, अगर हमारे माँ बाप के बाद अगर कोई मेरे लिए कोई किसी के दिल में अगर जगह है तो वो ये नवोदया है। क्योंकि इसी में हमें आके जो एक जज्बा, रहने का तरीका, पढ़ने का तरीका, कंपटीशन क्या है, उस दौर में कंपटीशन क्या होता था, वो हमें यहीं पे आके पता चला। हमारी स्कूलिंग जो गवर्नमेंट स्कूल से हम आए, वहाँ पे हमने 5th में जाके ABC सीखी थी। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 5th में सीखी थी। उसके बाद यहाँ हम आए
यहाँ की स्कूलिंग हुई, तो आज मैं अगर टीचर हूँ तो नवोदया की वजह से ही। तो उसके बाद मेरी माइग्रेशन होगी, मैं JNV चला गया। प्रीखेड़ा जो अभी पहले फरीदकोट में था, अभी तो मुक्तसर में है, वहाँ पे मैंने पढ़ाई की। तो ये मैं सबसे वापस ज़्यादा तो समय नहीं लूँगा, मैं यही बोलूँगा कि जो आपके माँ बाप और यहाँ पे अभी यहाँ पे हमारे जो माँ बाप है, आपके माँ बाप है, यहाँ का माहौल आप ठीक रहेंगे, ठीक रखेंगे, जो बोलेंगे टीचर्स उनकी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, उनकी बातों का अनुसरण करेंगे, तो आपको सक्सेस होने में जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता। नवोदयंस जो है वो ऑलराउंडर होते हैं, आप जहाँ से बाहर निकलो आप हर एक फील्ड में कामयाब होते हैं, ये मेरा वायदा है आपसे। लेकिन बशर्ते है कि आप अपने टीचर्स गुरुजनों की जो आगे है उनका पालन करें। बाकी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने स्पीच को विराम देता हूँ। आना पड़ेगा तो इस बार नहीं छोड़ेंगे। मैं एक शेर बोलना चाहूँगा कि चिराग आंखों में रखना, दूर दूर तक रात है, हम भी मुसाफिर हैं, आप भी मुसाफिर हैं, ना जाने किस हालात में मुलाकात हो। जय हिंद। आज बहुत अच्छा लग रहा है, एक ज़माने के बाद वापस नवोदय में आने का मौका मिला। बात अगर नवोदय की हो रही है तो हम समझते हैं कि हमारा फर्स्ट बैच है, और जिनको ये मौका मिला जो हमें कनेक्शन मिली, जो हमें टीचर्स मिले, जो हमें एजुकेशन मिली, उसके एजुकेशन के बल पर हम आगे बढ़े। मैं आपको बता दूँ, आज भी 89 में जो हमारे प्रिंसिपल ने दिया नवोदय था, शायद मैं कई बार भूल जाता हूँ गुड मॉर्निंग बिजला, लेकिन सर चैनल पे डेली आता है। तो ये आप सोच सकते हो कितने बच्चे आते हैं टीचर्स की लाइफ में, लेकिन टीचर्स को बच्चे याद रहे, हमें उस लेवल तक अपने आप को उठाना है, अपनी पहचान बनानी है। स्टूडेंट लाइफ जो है अभी आपको मुश्किल लगती है, लेकिन एक वक्त आता है कि इससे बेहतर जिंदगी नहीं होती। ये जो स्टूडेंट लाइफ है, इसको बाद में जहाँ रखते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले तो मैंने वहाँ पे वो कमरे देखे हैं, हम बैठे थे, ये आपकी हालत थोड़ी खराब हो गई है, लेकिन बड़ा हमें वो पुराने दिन वो बचपन के याद आए। वहाँ हम पढ़ा करते थे, वहाँ हम रहा करते थे, रात को सोया करते थे, बच्चों वाली शादी दिया करते थे। तो हमारे वार्डन हुआ करते हैं राजेंद्र सिंह। मैक्सिमम लोग हमें व्हाट्सएप पे हमें हमारे साथ चैटिंग है, लेकिन वही जिंदर सिंह सर आज तक हमसे मतलब नहीं इन टच हो पाए, तो उनकी हमें बड़ी याद आती है। उन लोगों ने हमें जिंदर सर ने हमें हमारे वार्ड थे अभी बच्चों की तरह पाला, हमें पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार किया, पेरेंट्स की तरह हमारी जरूरतें पूरी की उनने, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा। तो वो सब बातें जब नीचे गया हमारी बिल्डिंग भी पानी, तो वो सारी बातें मुझे याद आई। मैं इवन गर्ल्स हॉस्टल था वहाँ पे भी गया हूँ, गाँव से वहाँ पे भी चक्कर लगाया। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज से 6th क्लास में पहुँच गया। आप सब बच्चे को देख के ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कोई इम्प्लाई नहीं था, मैं बड़ा हो गया हूँ। आज अपने मतलब आपको देख के ऐसा लग रहा है कि मैं आज से 6th क्लास में आ गया। एक टीचर का स्पीच मस्ट है। हाँ दे रही है। मैं फर्स्ट बैच हमारा था स्कूल का, मैं एग्रीकल्चर काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ।
तो इस स्कूल के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। डॉक्टर चंद्र ने बोल दिया और मेरे छात्रों ने बहुत अच्छा बोल दिया। उस टाइम में एक ही स्कूल था और वाकई हम लोग हमारे पीछे कहा करते थे कि आप लोग जो जहाँ पे सिलेक्ट हुए हो, यू आर द क्रीम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो आज जो बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं, ये कोई शक नहीं है कि आप लोग इसमें क्रीम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हो। जिस तरह से हमारा पहला जो बैच था, मैं आपको बता दूं, आपको बड़ी खुशी होगी ये जानकर कि पहले बैच में हमारा एक भी ऐसा बंदा नहीं, 99.9% इवन हमारे लोग वेल एडजस्ट। और ये बहुत बड़ी बात है। एक स्कूल का पहला बैच 99% लोग उसमें वेल एडजस्ट होना, ये हमारी स्कूलिंग डेवलपमेंट जो हमारी आज है, हम समाज के जो हमारी पोजीशन है, जहाँ हम सोशली जो काम करते हैं, सोशल लोग हैं, वो स्कूल की दे स्कूल ने हमें सिखाया है। आप बच्चों को बड़ा अच्छा मौका मिला हुआ है। आप लोग भी बड़े खुशकिस्मत हैं जिनको यहाँ पे पढ़ने का मौका मिला है। तो आप भी थोड़ा जो टीचर्स के अकॉर्डिंगली चलेंगे, जो टीचर्स आपको गाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि आप कोई भी बंदा ऐसा होगा जो सक्सेसफुल नहीं होगा, आप भी अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ज़्यादा तो मैं क्या दूँ और देते ही रहूँगा। थैंक यू। सबके कोशिश करने में लगे हुए बच्चों से भूख लगी। आज बच्चों से बड़ा कर पा रहा हूँ। मुझे आज फर्स्ट बड़ी जगह में स्टूडेंट लेके मुझे लगा तो आपकी आंखों में आपके देश में अपना देख रहा हूँ। मुझे लगा मैं बताऊँ इसलिए भी आपको समझ है जब आप वहाँ से जाओ, जब आप नहीं जाने यहाँ से आओ, तब आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। पुराने तरीके से हम चलाया है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए एक गाना भी गाऊंगा और नवोदय की शान भी बताऊंगा। मैं हर जगह हिंदुस्तान के कोने में मैं और भी सर्विस की है। मैंने यहाँ 1994 में ज्वाइन किया था, तो उससे लेकर आज तक मैं नवोदय में रहा और मैं किसी भी स्टेज पे गया हूँ, किसी चेक पोस्ट पे गया हूँ, कहीं ट्रैफिक में गया हूँ, तो हमारे नवोदय के वहाँ हमें मिलते थे। मैं रजौरी में गया हूँ, मैं जम्मू अस्पताल में गया हूँ, तो मुझे देखकर और ये इनसे मिलकर बड़ी खुशी होती है और मैं आगे भी खुशी रखता हूँ ये बच्चे हमारी पहचान बना रखे। तो मैं एक छोटा सा गाना चाहता हूँ जो कि या हो बाबा तेरी देवा कड़ाई ते पंजे तीर मनावा, या हो बाबा तेरी देवा कड़ाई ते पंजे तीर मनावा, कि पहली पेशी यार छुट जाए
के पहली पेश यार छुट जाए ओ लड्डू वंड के कचहरी विच आवा ओ लड्डू वंड के कचहरी विच आवा नी पहली पेशी यार छुट जाए हो बागां दे विचों उड जान बहारा ओ मेरी हाल ने हो बागां दे विचों उड जान बहारा ओ मेरी हाल ने ते जे ना होवे माली हो कैद होगी मित्रां नू चली जाएंगे कचहरी विचों खाली ते कैद होगी मित्रां नू। मैं इसी पे खत्म करता चाहता हूँ, तो मुझे मौका मिले तो छोड़ता नहीं माइक को, लेकिन चलो गुड आफ्टरनून सभी को। बहुत ही मैं कहता हूं कि पहले 6 महीने हमें यहाँ पे हो गए हैं, प्रिंसिपल साहब और मैं लगभग एक साथ ही हमने ज्वाइन किया और कई दिन अच्छे भी गुजरे हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन उनमें से सबसे सुंदर दिन अगर कोई था तो आप लोगों को देख के और आप लोगों से मिल के हमें एक ऊर्जा मिली है, एक ताकत मिली है। और अब ये जो रिश्ता हमने कायम किया है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको हम और बढ़ाएंगे, ये कारवां और बढ़ेगा और ताकत पकड़ेगा। जैसे बहुत सारी बातें हुई, मैं अब अपने बच्चों को अक्सर ये बताता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं और जो दूसरे बच्चे हैं, बाहर के बच्चे हैं, जैसे ये एग्जाम्पल मैं अपने बच्चों को देता रहता हूं कि हमारे बच्चे बाज के बच्चों की तरह हैं और बाहर जो बच्चे हैं वो चिड़िया के बच्चे की तरह हैं। चिड़िया के बच्चे घर में दीवारों पे ही उड़ना सीखते हैं और उनकी उड़ान भी उतनी रह जाती है। और जो नवोदय हैं वो इस तरह से है जैसे बाज अपने बच्चे को लेकर खुले आसमान में चला जाता है और बहुत ऊंचाई से जाके उसको छोड़ देता है। उसकी माँ को भरोसा है कि अगर ये उड़ नहीं पाया तो मैं पकड़ लूंगी इसको, कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने बच्चे का भरोसा चेक करना चाहती है। जब बच्चे को छोड़ती है वो माँ, बच्चे के दिल में एक बार तो होता है कि मुझे छोड़ दिया। जैसे हमारे पास बच्चे घर से आते हैं तो बच्चों को लगता है कि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया, बाहर भेज दिया, रोते हैं यहाँ पे आके, उनके दिल पर भी ऐसे गुजरता है। लेकिन वो बच्चा जब नीचे गिर रहा है, उसको डर लगता है, सहमता है, डरता है। अचानक से उसके पंख खुलते हैं और जब उसके पंख खुलते हैं तो उसको पता चलता है कि मेरे अंदर क्या ताकत है। जैसे अभी सर ने बताया था कि चील के बच्चे को भी पता नहीं है कि उसके अंदर क्या ताकत है, तो हमारे जो चील के बच्चे हैं, हमारे जो बाज के बच्चे हैं, इनको खुले आसमान में पता चलता है कि हमारे अंदर क्या ताकत है। और जब ये वहां उड़ना सीखते हैं, जब ये उस ऊंचाई से उड़ना सीखते हैं, इनको कोई ताकत इनको रोक नहीं सकती। मैं अक्सर इन बच्चों को ये भी बताता हूं कि रामायण में एक बहुत बड़े किरदार हैं हनुमान जी, उनको भी पता नहीं है कि मेरे अंदर क्या ताकत है। रामायण में ही एक दूसरे किरदार है जिनकी ड्यूटी ये लगा रखी है कि इनको समय समय पे बताते रहना। जामवंत जी हैं, जब राम जी ने बोला कि, या उनमें से किसी ने बोला कि इस समंदर को कौन लांघ सकता है, तो
सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। हनुमान जी भी देख रहे हैं किसी और की तरफ, ये लांग सकता है, ये भी हो सकता है, कौन हो सकता है। तब जाम जी ने उनको उठाया कि उठो तुम ही हो वीर, लांग सकते हो इस समंदर को एक छलांग में। हम भी अपने बच्चों को यही बताते हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो ताकत है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको मालूम नहीं है। हमारी ड्यूटी वही है, हम लोग आपको ये बताते हैं। आज जो प्रिंसिपल साहब ने ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित करवाया, सभी स्टाफ ने मिलकर इसको सफल बनाया। ये बेटा एक प्रयास है आप लोगों को एक रास्ता दिखाने का। जैसे होता है ना, एक नदी के दूसरे तरफ कोई गया हो और वहां से बता रहा हो कि यहाँ लांघा जा सकता है, इसको पार किया जा सकता है। ये जो एलुमनी आज आए हैं, ये आपको इशारा कर रहे हैं कि रास्ता है, सिर्फ आप अपनी हिम्मत करिए और इसको लांघ सकते हैं। हम निकल आए हैं, हमने वो कर दिखाया है, आप भी कर सकते हैं। तो आप सभी यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चों को आपने मार्गदर्शन किया और मैं चाहता हूं, जैसे मैं पुनः बोलना चाहता हूं कि इस रिश्ते को हम और बढ़ाएंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे। एलुमनी का काम सिर्फ यही नहीं है कि एक दिन साल में आए और एक ऐसा आयोजन हो, आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ, हमारी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। आप बड़े बड़े पोस्ट पे कहीं कहीं जॉब कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप एक बार हमारे इस स्कूल के बारे में जरूर सोचा करें कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं, और हम आपकी तरफ देखते रहेंगे, आपसे उम्मीद बनाए रखेंगे कि आपकी तरफ से भी हमें वो सहायता आएगी। ये बच्चे जैसे आज आपके साथ जुड़े हैं, हमेशा जुड़े रहें, हम ही आपसे उम्मीद करते हैं। और इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में जितने भी लोगों का प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से जिनका भी इसमें योगदान रहा है, मैं सबका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उस पहले शख्स का भी जिसने यहाँ झाड़ू लगाया सुबह आके, जिसने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया, मैं सबसे पहले उसको नमन करना चाहता हूँ कि उसने सबसे पहले आकर ये सारा अरेंजमेंट करवाया। टीचर्स जो हैं, जो सुबह मुझे लगता है नींद खुलते ही यहाँ पहुंच गए थे, लगभग 6 या 7 बजे के बाद, 7:30 बजे के आसपास। उन्होंने ब्रेकफास्ट भी सबसे बाद में किया। उन सब टीचर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेस में जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा भी नहीं है, आप लोगों के लिए खाना बना रहे हैं लगातार, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बच्चों का, प्यारे बच्चों का जो यहाँ बैठे हैं और आपने सुना और एक डिसिप्लिन बना के रखा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और मैं सभी एडमिन से ये रिक्वेस्ट करूंगा, एक लास्ट परफॉर्मेंस इसके बाद कंक्लूड करेंगे और उसके बाद आपके लिए लंच भी तैयार है। हम सभी मैस में चलेंगे, सभी बच्चों के साथ वहां बैठ के हम लंच करेंगे। थैंक यू वेरी मच।